اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. سورہ یونس کا پہلا ہی رکوع چل رہا ہے. اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کونیہ اور آیات قرآنیہ کے ذریعہ اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود اور اللہ کی صفات کے اندر میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی. آیت تھی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دن کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر وہ برقرار ہوا عرش پر. یدبر الامر، حکم کو انجام دیتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا. پھر دوسری آیت جو نیچے ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اس کے اندر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلی آیت میں جو یدبر الامر تھا، عرش بری پر برقرار ہو کر مستوی ہو کر معاملات کو، امور کو، احکام کو جو انجام دیتا ہے، تو احکام تشریعی احکام بھی ہوتے ہیں اور تکوینی احکام بھی ہوتے ہیں. تکوینی احکام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس طور پر کرو، یہ کام ایسا کیا جائے گا، کپڑے ایسے بناؤ، مکان ایسے بناؤ، کھیتی باڑی ایسے کرو. ان کو احکام تکوینیہ کہا جاتا ہے. انسان جنت کے اندر میں رہتا تھا اور خطا کی اس کی وجہ سے دنیا کے اندر میں اس کو ڈال دیا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ تکوینیات کی وحی نازل فرمائی. کھیتی کیسے کریں، کپڑا کیسے سیے، مکان کیسے بناویں، یہ وحی نازل ہوئی. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی احکام نازل فرمائے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اس طور پر. اور مختلف شریعتوں کے اندر میں مختلف احکام آئے. نماز کا حکم آیا، روزوں کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، نکاح کا طریقہ وغیرہ یہ سب کچھ آیا. یہ احکام جو ہے احکام تشریعیہ کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر میں
युदब्बिरुल अम्र, इसकी तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श बरी पर बरकरार होकर मामलात को, कामों को, उमूर को, अहकाम को अंजाम देता है। इसी को आगे वाली आयत के अंदर में फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है अल्लज़ी जअल शम्स दिया, जिसने सूरज को चमकता चिराग बनाया, वल कमर नूरा, और चांद को रोशन बनाया। कल बताया था कि सूरज की रोशनी उसकी ज़ाती है, चांद की रोशनी ये सूरज की रोशनी का अक्स पड़ता है, ये उसकी रोशनी है। वक़द्दरहु मनाज़िला, और अल्लाह ताला ने चांद के लिए मंजिलों को मुक़द्दर फरमाया, मुतअय्यन फरमाया। यहाँ उलमा किराम ने लिखा है कि सूरज के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने मंजिलें मुतअय्यन फरमाई है। एक कौल के मुताबिक 360 मंजिलें हैं, दूसरे कौल के मुताबिक 365 मंजिलें हैं। ये सूरज जो है अपना दौरा 360 या 365 दिन के अंदर में पूरा करता है। इसका दौरा ख़त्म हो जाता है साल के अंदर में, और चाँद का दौरा ख़त्म होता है या तो 29 दिन के अंदर में या 30 दिन के अंदर में। इसलिए हर महीने के अंदर में एक दिन या 2 दिन चाँद गायब रहता है, चाँद नज़र आता नहीं है। तो ये उलमाए किराम ने लिखा है कि चाँद के ज़रिया से हिसाब मालूम करना हर आदमी के लिए आसान है सूरज की बनिस्बत। सूरज रोज़ाना उगता है, सूरज रोज़ाना निकलता है, लेकिन सूरज जब निकल जाता है उसके बाद कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये पहले दिन का सूरज है या दूसरे दिन का सूरज है, या आज 25 तारीख है या आज 28 तारीख है, कोई नहीं कह सकता। चाँद को देख करके आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। जैसे पहले दिन चाँद जब बहुत बारीक होता है तो कहते हैं कि आज ही का चाँद है, बिल्कुल बारीक है, और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि नहीं कल का लगता है। तो चाँद को देख करके देहाती से लेकर के शहरी से लेकर के हर कसो नाकस आदमी तारीख को बता सकता है। जैसे 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख, जिनको अय्याम 20 कहा जाता है, और इस चाँद को बदर कहते हैं। इन 3 रातों के अंदर में चाँद पूरा का पूरा कामिल और मुकम्मल होता है। 1 से लेकर के बढ़ते 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 13 तारीख पर बिल्कुल बढ़ जाता है। 13 और 14 और 15 3 तारीख को बराबर रहता है। फिर 15 के बाद 16 तारीख से चाँद का घटना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि 29 तारीख को या 29 तारीख को या 30 तारीख को चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता। कुरान पाक के अंदर में पहले पारे के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चाँदों के बारे में सवाल करते हैं। चाँदों के बारे में सवाल करने का मतलब ये था कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि ये चाँद घटता क्यों है, चाँद बढ़ता क्यों है। पहली रात का चाँद पतला होता है, 13वीं, 14वीं और 15वीं रात का चाँद मुकम्मल होता है, फिर घटते 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 बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये सवाल किया था लोगों ने, चाँद के घटने और बढ़ने का सवाल था। लेकिन हम और आप जानते हैं कि अगर कोई नासमझ आदमी या नाबालिग बच्चा या छोटा सा बच्चा अगर कोई सवाल करे, बहुत बड़ा सवाल करे, और उसका जवाब आपको और हमें मालूम होता है, लेकिन उस बच्चे की सतह और उस बच्चे की कैपेसिटी से ऊपर का होता है, उसके सवाल का अगर हम जवाब दें तो बच्चे की समझ में न आवे, इसलिए हम इधर उधर का सवाल का जवाब दे देते हैं और बच्चे को समझा देते हैं। इसी तौर पर यसअलूनका अनिल अहिल्ला के ज़रिया से जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो सवाल और जवाब कुरान पाक के अंदर में नाजिल फरमाया। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चाँदों के घटने और बढ़ने के बारे में सवाल करते। अब इसका जवाब
अल्लाह तबारक व तआला अगर देता तो इंसान की अक़ल और इंसान की सतह से बाहर का था, इंसान की समझ में न आता। चाँद के घटने और बढ़ने की हिकमत, चाँद के घटने और बढ़ने की मसलहत जो अल्लाह तबारक व तआला जानता है, कोई नहीं जानता। और अगर इंसानों को बताया जाए तो इंसान की समझ में ना आवे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवाल था उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल का जवाब दिया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कह दो कि ये जो चाँद का घटना और बढ़ना जिसके बारे में तुम सवाल करते हो, ये यूँ समझो ये चाँद जो है ये हज और यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, लोगों के लिए वक्त मालूम करने का ज़रिया है, लोगों के लिए वक्त मालूम करने का आला है, और हज का ज़माना मालूम करने का ज़रिया है और आला है। बस इतना समझो, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक और बात लगे हाथ यहाँ पर बता दूँ कि समंदर के अंदर में पानी आता है, जवार भाटा जिसको बोलते हैं, जोर और शोर के अंदर में पानी आता है। पानी बढ़ता रहता है, रोज़ाना बढ़ता है, फिर उसके बाद में घटना शुरू होता है। इसका ताल्लुक भी चाँद के घटने और बढ़ने के साथ में है। ये माछी लोग हैं, इनसे जब पूछेंगे तो बताएंगे कि भाई आज पानी बहुत ज़्यादा आएगा, आज पानी कम आएगा। चाँद के घटने और बढ़ने पर समंदर के अंदर में पानी का बढ़ना और घटने का दारोमदार है और ताल्लुक है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन दो अल्लाह की मखलूक के दरमियान के अंदर में क्या क्या ताल्लुक और क्या क्या जोड़ है। इसीलिए कल परसों भी अर्ज़ किया था कि तफक्करू फी खल्क़िल्लाहि, अल्लाह की मखलूक के अंदर में गौर व फिक्र करो, वला तफक्करू फिल्लाहि, अल्लाह की ज़ात के अंदर में गौर व फिक्र मत करो। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वक़द्दरहु मनाज़िल, चाँद के लिए मंजिलों को मुतय्यन किया। दो चीज़ों का जिक्र किया, सूरज का जिक्र किया, चाँद का जिक्र किया। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने सूरज को चमकता बनाया। वल कमर नूरा, कमर यानी चाँद, नूर यानी रोशन, और चाँद को रोशन बनाया। फिर इसके बाद में जब मंजिलों को बयान करने का तज़किरा किया तो वक़द्दरहु मनाज़िल, हु जिक्र किया, हुमा जिक्र नहीं किया। हु से मुराद एक, अब ये हु से मुराद चाँद है कि चाँद के लिए मंजिलों को मुतय्यन किया। सूरज के लिए भी मंजिलें मुतय्यन हैं 360 या 365, लेकिन उसको जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया। चाँद की मंजिलों को मुक़द्दर फरमाया और उसकी वजह और उसका सबब बतलाया। लिताअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की तादाद और गिनती और हिसाब को मालूम करो। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ि, अल्लाह ताला ने इसको पैदा जो किया हुआ है बरहक पैदा किया हुआ है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह तबारक व तआला आयतों को तफसील के साथ, डिटेल के साथ बयान फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो जानते हैं। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अब यहाँ पर कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, कायनात के अंदर में सारी चीज़ें बनाई, कायनात के अंदर में गौर व फिक्र करके अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से तरीके बतलाए। लेकिन कुछ लोगों ने या हर ज़माने के अंदर में ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं कायनात की चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया, इन्हीं को मानना शुरू कर दिया और इसी से मांगना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कुरान पाक के अंदर में बयान फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से कायनात के अंदर में गौर व फिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुबहानक
फ़क़ीना अज़ाबन्नार। दो बातें हैं, कायनात के अंदर में गौर व फिक्र करना और गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना, ये तो मतलूब है। कायनात को पूजना और कायनात से मांगना और कायनात को मांगना और कायनात को अल्लाह के साथ मानना और अल्लाह के साथ में उसकी इबादत और पूजा करना, ये मना है, शिरक है। एक चीज़ वो भी है कि आदमी अल्लाह को माने और कायनात को बेकार माने, लघु व बेकार माने, कायनात को बातिल माने, ये भी गलत है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि नेक बंदे वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला से दुआओं के अंदर में अर्ज़ करते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे परवरदिगार, इस कायनात को, इस ज़मीन को, आसमान को, चाँद को, सूरज को जो तूने पैदा किया हुआ है, ये कोई बातिल पैदा किया हुआ नहीं है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। अगर कोई आदमी कायनात को पूजे वो भी गलत, बातिल माने वो भी गलत, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पाक है। सुबहानक, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ज़ात को छोड़कर हम इस कायनात को पूजने लगे और तेरी ज़ात को छोड़कर इन कायनात से हम मांगने लगें। सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है। सुबहानक फ़क़ीना अज़ाबन्नार, कहीं ऐसा ना हो कि इन कायनात को हम मानने लगें और पूजा करने लगे और इसकी वजह से तू हमको जहन्नम के अंदर में डाल दे। फ़क़ीना अज़ाबन्नार, तो हमको जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा। इसी मज़मून को अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया, मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़। इन तमाम कायनात को अल्लाह तबारक व ताला ने हक़ के साथ में पैदा फरमाया है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह तबारक व ताला आयतों को, निशानियों को खोल खोल बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानते हैं। तो कल और परसों से हमारा ये मज़मून चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला आयत कुरानी के अंदर में, आयत कौनिया के अंदर में गौर फिक्र करने का अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देता है। तो गोया हमारे पास अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफ़ात के साथ पहचानने के लिए दो चीज़ें हैं। एक कुरान की आयत है और कुरान की आयत हमको दावत देती है कि कायनात के अंदर में गौर फिक्र करो। इसलिए आगे अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया, इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, बेशक रात और दिन के बदलने में, रात और दिन के आने जाने में, वमा खलक़ अल्लाहु, और वो चीज़ें कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाई, फिस समावाति वल अर्दी, आसमानों और ज़मीनों के अंदर, लआयातिन, अलबत्ता बहुत बड़ी निशानियां हैं, लिक़ौमिन यत्तक़ून, उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह से डरते हैं। रात और दिन के आने में, दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने तज़किरा फरमाया है, दूसरे पारे के अंदर में है कि रात और दिन का आना और इसी तरीके से ये बादल वगैरह, इन तमाम चीज़ों का अल्लाह तबारक व ताला ने तज़किरा फरमाया है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, बेशक आसमानों की और ज़मीनों की पैदाइश के अंदर में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, रात और दिन के आने जाने में, वल्फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़अुन नास, और वो कश्ती जो समंदर के अंदर में चलती हैं लोगों की नफ़ा देने वाली चीज़ों को उठाकर, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और वो जो अल्लाह ताला ने आसमान पर से यानी बादल पर से पानी को बरसाया, फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, ज़मीन के मर जाने के बाद यानी ज़मीन के खुश्क हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन को ज़िंदा किया, उगाया। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इस ज़मीन के अंदर में हर किस्म के जानवर और चौपायों को पैदा किया, फैलाया। व तसरीफ़िर रियाही, और हवाओं को फेरने में, व सहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्दी,
اور وہ बादल जो आसमान और ज़मीन के बीच के अंदर में मुअल्लक मुसख्खर है, लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन तमाम चीज़ों के अंदर में अलबत्ता अक्ल वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। आदमी इसके अंदर में गौर फिक्र करे। यही चीज़ें हैं आसमान दूसरी जगह के अंदर में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा फरमाया बिगैर आमदिन तरौनहा, कोई सुतून नहीं है उसका, आसमान का कोई सुतून नहीं है। ज़मीन भी किसी की चीज़ के सहारे पर नहीं है, सारी कायनात को फिरता कर दिया। रात और दिन के अंदर में कभी दिन लंबा होता है तो रात छोटी होती है, या रात लंबी होती है तो दिन छोटा होता है। इसी तरीके से बड़ी भारी भारी चीज़ों को लेकर कश्तियाँ जो समंदर के ऊपर में चलती है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत पर दलालत करने वाली, बतलाने वाली निशानियों में से एक निशानी है। 100 ग्राम का लोहा अगर पानी के ऊपर में अगर हम रखते हैं तो डूब जाता है, और ये हज़ारों मन और लाखों टन ले करके कश्तियाँ और जहाज जो समंदर के अंदर में चलते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। बादल को देखें, आसमान और ज़मीन के बीच के अंदर में मुअल्लक है, कोई सहारा नहीं। इसी तरीके से ज़मीन खुश्क हो जाती है, बारिश बरसती है और ज़मीन हरी भरी हो जाती है। ये वगैरह वगैरह जो है ये निशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर बतलाने वाली और दलालत करने वाली सारी ये निशानियां हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भी बयान फरमाया कि रात और दिन के आने और जाने में और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के अंदर में पैदा कर रखा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा करने के बाद इंसानों को इस ज़ात के ऊपर में ईमान लाना चाहिए था। अल्लाह ताला की वहदानियत का, उसके एक होने का इकरार करना चाहिए, उसकी इबादत करना चाहिए, उसके अहकाम को मानना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद दुनिया के अंदर में 2 किस्म के लोग हो गए, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह की बात का इनकार करने वाले। ज़ाहिर बात है कि जब अल्लाह की बात मानने वाले हैं तो उनको बदला मिलना चाहिए, इनकार करने वाले हैं तो उनको उनकी आमाल की सज़ा मिलनी चाहिए। और कल अर्ज़ किया था कि ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है, अमल और काम करने की जगह है, बदला देने की जगह नहीं है, सज़ा देने की जगह नहीं है। बदला और सज़ा देने की जगह ये आखिरत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इन 2 किस्म के लोगों का तज़किरा किया, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह के न मानने वाले। इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, बेशक वो लोग कि जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का यकीन और ईमान नहीं रखते। एक बात, एक सिफत तो ये हुई कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का यकीन नहीं होता। वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, और दूसरी सिफत उनके अंदर में ये पाई जाती है कि मरने का उनको कोई खौफ नहीं है और कोई डर नहीं है। वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर में राज़ी हो गए। और तीसरी सिफत वत्मअन्नु बिहा, इस दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर में मुतमईन हो गए, इत्मीनान हो गया कि हमको यहीं रहना है और हमको हिसाब किताब कुछ देना नहीं है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना नहीं है। ये 3 सिफतें बयान की। इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर में वो लोग राज़ी हो गए। वत्मअन्नु बिहा, और इसी दुनियावी ज़िंदगी पर मुतमईन हो गए। 3 सिफत। चौथी सिफत वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और वही लोग हैं जो हमारी आयतों से गाफिल है, हमारी निशानियों से गाफिल है। अब बात का अंदाज़ देखो, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के अंदर में गौर फिक्र करने के लिए कहा, फिर उसी आयत के अंदर में कायनात के अंदर में गौर फिक्र करने के लिए कहा, फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो न मानने वाले हैं
आखिरत पर ईमान रखने वाले नहीं है, दुनियावी ज़िंदगी को अपना मतमई नज़र समझ रखे हैं और उसी के ऊपर में मुतमईन होकर ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी चौथी सिफत जो अल्लाह ताला ने बयान की वो ये है कि वल्लदीना हुम अन आयातिना गाफिलून, हमारी आयतों से ये लोग गाफिल हैं। अब आयतें दो किस्म की, कल परसों से हमारा यही मजमून चलता है कि आयतें दो किस्म की, आयत कुरानिया और आयत कौनिया। कायनात के अंदर में भी गौर फिक्र नहीं करते और कायनात में गौर फिक्र करके अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं लाते और कुरान पाक की आयत के ऊपर में भी अमल नहीं करते, बल्कि कुरान पाक की आयत पर ये लोग ईमान न लाते हुए ये लोग गाफिल हैं। अगरचे अच्छा एक बात और बतला दें, आखिरी बात, उलाइका मावाहुमुन नार, वही लोग हैं कि जिनका ठिकाना जहन्नम है, आग है, बिमा कानू यक्सिबून, इसलिए कि जो कुछ भी वो दुनिया के अंदर में अमल वगैरह करते थे। यहाँ उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये काफिरों की सिफत है। काफिरों की 4 सिफतें अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई। मरने के बाद ज़िंदा होने का यकीन न करना, दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर में राज़ी हो जाना, दुनियावी ज़िंदगी को मुतमईन होकर के बसर करना और अल्लाह ताला की आयतों को गफलत से आयतों के साथ गफलत से पेश आना, तो उनका ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम बयान फरमाया है, बताया हुआ है। अगरचे ये बेईमानों का, काफिरों और मुशरिकों का तज़किरा है, लेकिन आखिरी जो आयत थी सिफत वल्लदीना हुम अन आयातिना गाफिलून, इसकी तफसीर के अंदर में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इसके अंदर में ईमान वाले भी शामिल हैं, ईमान वाले भी इसके अंदर में दाखिल हैं। वल्लदीना हुम अन आयातिना गाफिलून, वो लोग कि जो हमारी आयतों से गाफिल है, इसके अंदर में ईमान वाले भी आ गए। बहुत से ईमान वाले हैं कि जो अल्लाह ताला की आयतों के ऊपर में अमल नहीं करते, बहुत से ईमान वाले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की कायनात के अंदर में गौर फिक्र करके मारिफत हासिल नहीं करते, तो ईमान वाले भी इसके अंदर में दाखिल है। फिर उसके बाद में दूसरा तज़किरा फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, बेशक वो लोग कि जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, यहदीहिम रब्बुहुम, अल्लाह ताला उनको या उनका परवरदिगार उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है, बिईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से। काफिरों का तज़किरा हुआ, काफिरों की सिफत को बयान किया, काफिरों का ठिकाना जहन्नम होना बताया, उसके बाद में ईमान वालों का तज़किरा, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल किए। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हिदायत अता फरमाता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, ईमान के साथ में अमल सालिह का होना ज़रूरी है। मेरा ईमान जो है ये नजात के लिए काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ साथ अमल सालिह का होना ज़रूरी है। यहदीहिम, हिदायत के 2 माने आते हैं। पहले भी कुछ साल पहले आप ही लोगों के सामने बताया था कि हिदायत का माना रास्ता बताना है और हिदायत का माना मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना है। तो रास्ते बताने का जो काम है ये नबियों का काम और नबियों के वरसा का काम और इस उम्मत का काम। हिदायत का रास्ता बताना ये नबियों का काम और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि कलिमा पढ़ लें, चाहे आहिस्ता से पढ़ ले, तो मैं बात की जिम्मेदारी जो मैं ले लेता हूँ, लेकिन कलिमा नहीं पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, आप जिनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहें आप मंजिल मकसूद तक पहुंचा नहीं सकते। आपका काम मंजिल मकसूद का रास्ता बताना है,
तो नबियों का काम जो है रास्ता बताना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े और तुफ़ैल के अंदर में हमारा काम भी जो है वो रास्ता बताना है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है हिदायत के लिए। तो यहाँ हिदायत का दूसरा माना मुराद है यहदीहिम रब्बुहुम, उनका परवरदिगार उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा। ईमान वाले और आमाल सालिहा करने वालों की मंजिल मकसूद ये जन्नत है, तो जन्नत तक पहुँचा देगा अल्लाह तबारक व तआला बि ईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से। फिर जन्नत की सिफत बयान की, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, के उनके नीचे से नहरें बहती होगी, फिर जन्नतिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों के अंदर में। बात को मुख्तसर करके आगे वाली आयत अर्ज कर देता हूँ कि अब जन्नती जब जन्नत में पहुँच जाएंगे तो दावाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, उनका दावा से मुराद ये जो आम तौर पर जो मतलब समझा जाता है दावा, कि फलाने ने फलाने पर दावा किया, फलाना मुद्दई है, फलाना दावेदार है, हमारा इनके खिलाफ में ये दावा है, ये दावा मुराद यहाँ पर नहीं है। दावा का ये माना भी होता है अरबी ज़बान के अंदर में, लेकिन यहाँ दावा से मुराद वो दावा नहीं है। दावा से मुराद यहाँ पर दुआ है। दावाहुम फीहा, जन्नती लोग क्या दुआ मांगेंगे? दुनिया के अंदर में तो जन्नत मांगी, अल्लाह की रजामंदी मांगी, जहन्नम से नजात और छुटकारा पनाह मांगी, पुल सिराज से, मैदान हसरत से, कब्र के अदाब से वगैरह से पनाह के लिए दुआ मांगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर में पहुंचा दिया, और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो गया, कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। तो अब क्या दुआ मांगेगा? अब दुआ क्या मांगेगा? तो इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि दावाहुम फीहा, जन्नत के अंदर में ये दुआ मांगेंगे। क्या दुआ मांगेंगे? सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। दुआ उसको कहते हैं जिसके अंदर में मांगा जाता है और जिससे बचने के लिए मांगा जाता है, उसको दुआ कहते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। इसके अंदर में क्या मांगा? इसके अंदर में क्या पनाह मांगी? कुछ भी नहीं है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा हुआ है कि ये सुबहानक अल्लाहुम्मा का जो लफ्ज़ है, चाहे दुआ के माने के अंदर में नहीं है, या दावा के माने के अंदर में नहीं है, या इबादत के माने के अंदर में भी नहीं है। अगर हम दुनिया के अंदर में अगर पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो इबादत का सवाब मिलेगा। जन्नत के अंदर में इबादत है नहीं, जन्नत में नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगा तो उलमाए किराम ने लिखा है कि जन्नत की नेमतों से जो मज़ा आएगा खाने में, पीने में, इस्तेमाल करने के अंदर में, सुबहानक अल्लाहुम्मा कहने से भी ऐसा मज़ा आएगा कि जो जन्नत की नेमतों के अंदर में खाने पीने से जो मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा आएगा सुबहानक अल्लाहुम्मा कहने और पढ़ने की वजह से। व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, तहिया किसी के इस्तकबाल के लिए, किसी को वेलकम करने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो तहिया कहलाता है। जन्नत के अंदर में जो तहिया होगा ये सलाम होगा। आने वाला भी अस्सलाम वालेकुम कहेगा, जाने वाला भी अस्सलाम वालेकुम कहेगा। बातों के अंदर में सलाम ही सलाम होंगे, यानी वहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वो अभी तो दौड़ में बैठ करके हंसी मजाक से बातें कर रहे थे, हमने देखा था 5 मिनट के अंदर में क्या हो गया, लड़ने झगड़ने लग गए, एक दूसरे को गाली देने के लग गए। जन्नत के अंदर में ऐसा नहीं होगा, आपस में बातें होगी, वो भी सलाम ही सलाम की होगी। उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने सलाम के लफ्ज़ के लिए अलग अलग चीज़ें लिखी है। सूरह यासीन के अंदर में है कि सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, जन्नतियों को जो सलाम किया जाएगा वो उनके परवरदिगार रहम करने वाले रब की तरफ से सलाम किया जाएगा। दूसरी आयत के अंदर में है तकरीबन 26वें पारे के अंदर में कि फरिश्तों की तरफ से भी उनको सलाम किया जाएगा, और आपस के अंदर में भी एक दूसरे को सलाम करेंगे। ये तीसरी किस्म का सलाम यहाँ पर मौजूद है। वह आखिर दावाहुम, और उनकी आखिरी बात और आखिरी दुआ ये होगी अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है कि जो तमाम जहान का
पालने वाला है। तो गोया जन्नत के अंदर में इब्तिदा होगी सुबहानक अल्लाहुम्मा से, सलाम के ज़रिया से, और इंतहा होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। इस पर उलमा किराम ने एक बात लिखी है, इस पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ कि आदमी कोई भी काम करे, शुरू करे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करे, और जब काम ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाना शुरू करे, और खाना ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। इसी पर हम भी अमल करते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।